अ, जो आज का जो शीर्षक है वो रोमन अध्याय 4 से मैंने पढ़ा। वहां पर रोमन अध्याय 4 के 21 वचन में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। So for today's message, the message I got was from Romans chapter 4 verse 21, where it is mentioned that, and being fully assured that what he had promised he was able also to perform. परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, God had promised Abraham, और ये वादा ऐसा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। and the promise was that I will make a huge generation from you. और जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, and when God had promised Abraham that he will make a huge nation from him, तब अब्राहम वहां पर लिखा है उसके 19 वचन में, तब अब्राहम का शरीर मरा हुआ सा था। and it is mentioned in verse 19 of Romans 4 that time Abraham's body was like a dead man. अब्राहम अब 100 साल में देखता है कि उसका शरीर मरा हुआ सा है। उसके बाद में वो सारा को देखता है, वो भी उसका वहां पर लिखा है उसका गर्भ भी मरा हुआ सा है। So Abraham saw at the age of 100 that his body was like a dead man's body, and when he looked at Sarah, her body was also like a dead woman, and her womb was also dead. तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जब वायदा किया तब उसने परिस्थिति को देखा कि मेरा हालत भी मरा हुआ सा है, और सारा का हालत भी जब उसने देखा जहां से ये बच्चा उत्पन्न करने का जो प्रॉमिस है वो पूरा फुलफिल हो सकता है, वो दोनों चीज मरा हुआ है। So Abraham looked at his circumstances, and he was looking that he himself was like a dead man, and Sarah was also like a dead woman, and the womb where he had to and the womb from where the baby would have come, it was also like a dead place. लेकिन अब्राहम उस परमेश्वर को जानता है, बाइबल उधर 17 वचन में लिखा है, जो मरे हुए को जिलाता है। But Abraham knew a God, as it is mentioned in Romans 4 verse 17, that a God which resurrects dead people. और वो उसके आगे लिखा है, और जो बात है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। And it is mentioned that and calls into beings that which does not exist. हम जो चीज देखते नहीं उसका नाम कैसे ले सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो कुछ नहीं देखता है वो कहता है जैसे है। And the thing which we do not see, we cannot. How can we say? How can we call it by name? But our God is not like that. He even calls the name of the things which does not exist. बाइबल कहती है, जवानों तुमने जय पाया है। Bible says that youth you have gained victory. हम अगर अपने आंखों से ये ऐसे जय देख नहीं पाएंगे, लेकिन इधर लिखा है जो कुछ नहीं है प्रभु ऐसे नाम देता है मानो कि वो है। We will not be able to see the victory sometimes, but Bible says that God calls things which does not exist as though they exist. अब्राहम परमेश्वर को जानता था, इसीलिए उसने ऐसा विश्वास किया। Abraham knew God, that is the reason he believed in God. देखो उसने खुद को देखा, सारा को देखा, जहां से होप था वो कुछ नहीं था, लेकिन उसने वहां पर उसने एग्री किया, ये जो है बात है सत्य है, जो मैं देखता हूं खुद को और सारा को, ये सत्य है कि हम दो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। Abraham saw himself and Sarah, and he was having that the hope was also not there, but he believed that whatever God has promised, that is true. वो पूरा जानता था कि हमारी अवस्था ये है, उसने एग्री किया। And he knew that what his circumstances were, what his situation was. उसने ऐसा नहीं नकारा नहीं कि मेरा अवस्था ऐसा नहीं है, सारा का अवस्था नहीं, उसने एग्री किया वो चीज पर।
And he didn't say no, that no, I am not, I am in this position, or Sarah is not capable. He accepted that they were not capable. लेकिन उसके 20वें वचन में ऐसा लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने संदेह किया. And it is mentioned in verse 20 of Romans chapter 4 that he did not waver in unbelief but grew strong in faith. तो अपनी परिस्थिति को देखकर भी उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट नहीं किया. Looking at his circumstances, he did not doubt the promise of God. देखो, हम सोचते हैं कि जो यीशु पे विश्वास नहीं करता है वो अविश्वासी है. We might think that the people who don't believe in God are unbelievers. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन 20वें इसमें ऐसा कहता है कि संदेह करने वाला भी एक अविश्वासी है. But here it is mentioned in verse 20 that a person who doubts is also an unbeliever. Yeah. परमेश्वर के वचन पे डाउट करने वाला अविश्वासी है. The person who doubts in the word of God is also an unbeliever. उधर ऐसा लिखा है, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया. And here it is mentioned that he did not waver in unbelief but grew strong in faith. तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि we should never doubt on God's promise. We also should remember that we should never doubt on the promises of God. शायद हमको हमारी अवस्था अब्राहम जैसी दिखती होगी. It might be so that our situation might be like Abraham's situation. लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पे कभी संदेह नहीं करना है. But we should never doubt in the promises of God. क्योंकि बाइबल कहता है संदेह करने वाला कभी प्रभु से कुछ नहीं पाएगा. Because Bible says that the one who doubts will not receive anything from the Lord. और ये 21 वचन ने रियली मेरे लाइफ में ब्लेस किया और मैं नए नियम को और अधिक रीति से जान पाया. वहां पर लिखा है, निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है. And what is mentioned in verse 21 of chapter 4 has really changed my life, and I could now understand the new covenant better. And it is mentioned that, and being fully assured that what he had promised, he was able to perform. तो यहाँ पर ऐसा लिखा, जो प्रभु ने ये पहले तो उसने निश्चय जाना, मतलब ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो परमेश्वर उसे पूरा करेगा. So here we see that he understood the fact that the one who had promised, God who has promised this thing to him will surely make it to complete. अगर वो ऐसा कहता कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया लेकिन मैं उसे पूरा करूंगा, तो वो बात अलग होती. If he would be saying that yes, God has promised me something but I will accomplish it, then it would be a different thing. लेकिन वो कहता है जो कुछ प्रभु ने वायदा किया वो उसे पूरा करेगा. But he says here that whatever God has promised, God will fulfill that. यही एक नए करार का, नए नियम का सच्चाई है. And this is the true fact of the new covenant. कि परमेश्वर ही उसे पूरा करेगा. That God himself will accomplish it. ये ऐसा नहीं कि मैं उसे करूंगा, ये ऐसा है कि प्रभु उसे पूरा करेगा. It is not like that I will do something. It is like that God himself will do it. मैंने मैथ्यू ब्रदर, जॉर्ज ब्रदर को कई बार प्रचार करते हुए देखा है, सुना है पुराने नियम और नए नियम के बारे में. So many times I have heard Brother Matthew and Brother George sharing regarding the Old Testament and the New Testament. पुराना नियम कहाँ से शुरुआत होता है वो उन्होंने बताया. एक्सोडस 20 चैप्टर, वहां पे लिखा है हर चीज हमें करना था. वहां पर लिखा यू हैव टू डू, ऐसे वहां पर प्रभु हमको हमसे कराना चाहता था. And the Old Testament starts, as I've heard, from Exodus chapter 20, and there it is mentioned that everything we have to do, everything that you have to do this, you have to do that. लेकिन ये ब्रदर से ही मैं जान पाया कि नए करार का सत्य, जैसे इब्रानी अध्याय 8 में जैसा लिखा है 8 के 10 में, वहां से नया करार शुरू होता है. And this fact I came to know through brothers only, that as it is mentioned in Hebrews chapter 8, that
God, and from there only the New Testament starts. मैं सीख पाया उनसे कि नए करार में हर चीज प्रभु करना चाहता है. And I could learn this fact from them that in the New Testament, everything God is accomplishing on our behalf. पहले पहले मैं सोचता था कि ये बात ऐसा मतलब सही है क्या, कि मतलब हर चीज प्रभु ही करेगा तो हम क्या करेंगे. And initially I used to wonder that how can it be possible that everything if God is doing, then what we'll be doing. तो ऐसे मेरे मन में क्वेश्चन आते रहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं और प्रभु से जानता गया, उसको प्रभु के वचन को प्रभु मेरे को जैसे रिवील करता गया, तब मैंने जाना कि ये रेवलेशन ही ब्रदर लोग शेयर कर रहे थे. But as I came to know more and more about the Lord, and then I came to know the fact that this is the message that brothers were revealing to us. तो वहां पर ऐसा वचन लिखा है कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, वैसे प्रभु ने हमसे भी कुछ वादा किया है. And here it is mentioned in Hebrews chapter 8 that as God had promised Abraham that he will make a huge nation from him, the same way God has promised certain things to us also. उसके 8वें अध्याय के इब्रानी अध्याय 8 के 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि मैं उनसे एक वाचा बांधूंगा. It is mentioned in Hebrews 8 verse 10 that I will make a covenant with them, with the house of Israel. मैं उनके मनों में अपने वचन को डालूंगा. And I will put my laws into their minds. और मैं उनके हृदय में उसे लिखूंगा. And I will write them upon their hearts. मैं उनके ऊपर दयावंत रहूंगा. And I will be merciful to them. उनके पापों के विषय में मैं उन पर दयावंत रहूंगा. Regarding their sins, I will be merciful to them. और मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा. And I will remember their sins no more. ये परमेश्वर का वायदा है नए कवेनेंट के लिए. And this is the promise of God with regard to new covenant. लेकिन परमेश्वर ऐसा ये वायदा हमारे लिए क्यों किया है? But why has God made this promise to us? रोमियो अध्याय 11 के 26 में ऐसा लिखा है. It is mentioned in Romans chapter 11 verse 26. वो सियोन से आएगा. That he will come from Zion. और वो छुटकारा लाएगा. And he will bring deliverance. और हर एक अनगॉडलीनेस, अनक्राइस्ट लाइकनेस वो हमारे से दूर करेगा. And he will remove ungodliness from us. तो परमेश्वर का मेन उद्देश्य वही है. And the main purpose of God is that only. कि हर एक अभक्ति, हर एक अनक्राइस्ट लाइकनेस हमारे अंदर जो भी है उसे परमेश्वर दूर करना चाहता है. That every ungodly thing and every unchrist likeness he will remove from us. वहां पर भी वही लिखा है कि परमेश्वर आएगा, परमेश्वर हमें उद्धार देगा, परमेश्वर हमें वहां से छुड़ाएगा. तो यहाँ पे भी परमेश्वर का ही काम दिखता है. And here also it is mentioned that God will come, God will remove ungodliness, and God will bring salvation. So it is mentioned regarding God that he will do that. तो परमेश्वर चाहता है कि ये सारी अभक्ति जो हमारे अंदर, हमारे जीवन में है, उससे हमको डिलीवर करे. इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन तुम्हारे मन में डालूंगा, उसे अपने हृदय में तुम्हारे हृदय में लिखूंगा और तुमको पापों से छुड़ाऊंगा और तो कोई पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा. So it is in God's heart that he wants to remove every ungodliness from us, and that's why it is mentioned that in Hebrews that he will write his laws in our hearts, and he will remove every iniquity from us. तो रोमन जैसे 6:14 में लिखा है कोई पाप तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा. And as it is mentioned in Romans 6 verse 14 that sin will not have dominion over you. तो मैं कई बार ऐसा सोचता था कि ये वचन जो लिखा है मेरे जीवन में तो मैं पूरा नहीं देख पा रहा हूँ ये. So many times I used to think that the verse as it is mentioned in my life I am not able to accomplish it. क्योंकि मुझे कभी भी गुस्सा आ जाता था. Because so many times I used to get angry. फ्रस्ट्रेट हो जाता था. I used to get frustrated. टेंशन आ जाता था. I used to take so much tension. बहुत सारा विचार मेरे मन में आता था. And so many thoughts came to my heart. कई बार गलत मन में विचार आता था, कई बार गलत किसी के बारे में बोलता था. बहुत सारा ऐसा चीज था जो मैं देखता था कि मेरे लाइफ में अभी भी है.
So many times that wrong thoughts came in my heart. I used to think wrong regarding people. So I used to think that so many wrong things are there in my life. तो मैं सोचता था ये कैसे होगा कि कोई पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। कितने सारे ऐसे बात है जो अभी भी मेरे जीवन में ऐसा दिख रहा है मुझे। So I used to think that how is it possible that sin cannot have dominion in my life, because all these sins were still having dominion in my life. हम कितना भी बोले, कितना भी हम कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ हमसे गलती होती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अरे अभी तक हमारे अंदर वो सिद्धता नहीं है। So many times we fall and we make so many mistakes, and we see that we don't have that godliness in our life. उस समय परमेश्वर ने ये वचन से मुझसे बातें की थी। And in that time God talked to me through this verse. अब्राहम ने अपनी परिस्थिति को नहीं देखा। Abraham didn't look to his circumstances. अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पे बिना संकोच विश्वास किया। And Abraham believed in the promise of God without doubting and without any doubt in his heart. और यही प्रभु ने बोला, यही नया करार है। And God has said that this is the new covenant. कि तुझे भरोसा करना है मुझ पर। That you have to trust in me. तुझे विश्वास करना है मुझ पर। You have to believe in me. तू अपनी परिस्थिति को मत देख कि तू अभी कैसे लेवल से गुजर रहा है। You don't think that through which level you are going through. तू कितने बार गिर रहा है। How many times you are falling. लेकिन तू विश्वास कर। You just believe. क्या विश्वास करना है? What we have to believe? जिसने मुझसे वादा किया है। The one who has promised me. क्या वादा किया है? And what is the promise? कोई पाप तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। That no sin will have dominion over you. वो उसे पूरा करेगा। And he will accomplish it. और ये बात ने मेरी लाइफ में बहुत फ्रीडम दे दिया। And this fact has brought so much freedom in my life. और तब मैं जान सका, बाइबल ये कहती है फिलिपिय अध्याय 2:13 में। And then I could know this fact as it is mentioned in Philippians 2 verse 13. हमारे अंदर इच्छा देने वाला भी प्रभु है, उसे पूरा करने वाला भी प्रभु है। That the one who gives desires in our heart is also Lord, and the one who accomplishes those desires is also the Lord only. देखो, इच्छा दे रहा भी प्रभु है और उसे पूरा भी प्रभु कर रहा है। So the one who gives the desires is also Lord, and the one who accomplishes them is also the Lord only. हर चीज प्रभु ही कर रहा है। Everything the Lord was only doing. हम क्या कर रहे हैं? So what we are doing? मैं आपको बताता हूँ अब्राहम ने क्या किया। So I want to tell you that what Abraham did. उसने परमेश्वर के वचन पे संदेह नहीं किया। He did not doubt in the word of God. मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो प्रभु ने मुझे बताया, नेवर डाउट इन गॉड्स वर्ड। So brothers and sisters, I want to tell you this fact, what God has told me, that don't doubt in the word of God. क्योंकि जो संदेह करता है कि मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो पाएगा, ये प्रभु का वचन मेरे लिए नहीं है, तो उसके लिए प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है वो प्रभु से कुछ नहीं पाएगा। So if anyone doubts that all these promises are not for me, or my life is not worthy of all these things, then as Bible says that he will not be able to accomplish anything from the Lord. देखो, अब्राहम का हालत मरा हुआ सा था और उसने अपना परिवार को देखा, उसका भी गर्भ मरा हुआ सा था, लेकिन उसने वो चीज नहीं देखा। बाइबल कहता है उसने प्रभु की वचन की ओर विश्वास किया। Abraham's body was like a dead man's body, and his family's body, his family's circumstances were also like dead only, but he didn't see that. He believed in the promise of God. हमारा भी आत्मिक जीवन में कई बार ऐसा हम देखेंगे, हर मरा हुआ सा हालत है हमारा, ऐसा क्या है लाइफ, ऐसा नहीं है होना चाहिए। लेकिन अगर हम वही देखते रहेंगे तो हम कभी स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाएंगे। बट वी शुड बिलीव इन गॉड्स वर्ड कि कोई पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। प्रभु मेरे अंदर ये सब लिखा है, प्रभु मेरे मन में विचार डाला है, प्रभु इसे पूरा करेगा। वी हैव टू बिलीव दैट। So we may be seeing our spiritual life, and we'll be thinking that we are in such a downward situation, and our life is not a perfect one. But we should not look upon our lives. We should look upon God, that God will accomplish a good winning life for us.
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहली बात, हमें कभी प्रभु के वचन पे डाउट नहीं करना है। So, brothers and sisters, I want to say you that we should never doubt on the word of God. भले हमारे जीवन में हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हमने पढ़ा प्रभु जो नहीं है उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। So it might be that we are not able to see in our lives, but as it is written that God calls the names of those things that do not exist as though they do exist. पौल भी यही कहता है, जो चीज देखते हैं उस पे नहीं, हम अनदेखी चीज पर विश्वास करते हैं। Paul also says that the things though that exist, it's not that we should believe only on those things. We should also believe on things that do not exist. और दूसरा चीज अब्राहम ने किया, प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु की महिमा की। And the second thing what Abraham did was he believed in the Lord and he glorified the Lord. और तीसरा चीज है, वो कहता है कि प्रभु इसे पूरा करेगा। And its next thing is that he says that God will accomplish this. तो यही हमारा फेथ है। बाइबल में लिखा है कि ये चीज ने, ये जो तीन चीज अब्राहम ने किया, विश्वास किया, संदेह नहीं किया और विश्वास किया कि प्रभु इसे पूरा करेगा, वो बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। So these three things, as are mentioned in the Bible, that these three things which Abraham did, that he believed in the Lord, he did not doubt, and the third thing is that he believed that God will accomplish those things for him, were counted as righteousness for him. और उसके 4:23 वचन में लिखा है, ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, हर एक विश्वास करने वालों लोग के लिए ऐसा ही होगा। And it is mentioned in Romans chapter 4, Romans, no brother? Yeah. Romans 4 verse 13, that it is not only for Abraham, but whoever believes in the Lord, for all of them it will be counted as righteousness. तो सबसे पहले हमें यही करना है कि संदेह नहीं करना है, प्रभु पे पूरा विश्वास दिखाना है। So first of all we have to do this thing, that we should we don't have to doubt, but we have to trust the Lord with all our heart. और दूसरी बात ये करना है, we have to be obedient to God. And the second thing is we have to be obedient to God. अब्राहम ने खाली विश्वास नहीं किया, बाइबल कहती है उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 में कि अब्राहम ओबेड, प्रभु अब्राहम ने आज्ञा माना और वो उसने सब कुछ छोड़ दिया। So it's not that Abraham only believed in the Lord. It's mentioned in Genesis chapter 12 that apart from believing, he obeyed the Lord and he left everything for the Lord. उसने सब कुछ, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। He left everything, his family and everybody he left. और उत्पत्ति अध्याय 22 में ऐसा लिखा है, अब्राहम ने ओबे किया और अपने सन को सैक्रिफाइस करने भी गया। And Genesis chapter 22 it is mentioned that Abraham obeyed and he went to sacrifice his son for the Lord. तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम हमारे अंदर प्रभु काम करते हैं, हम विश्वास प्रभु पे दिखाते हैं, बहुत जरूरी है कि प्रभु की हर आज्ञा को हम ओबे करना की इच्छा रखें हमारे। प्रभु मैं करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे चाहिए प्रभु, आप मेरी सहायता करें। So it is very important that apart from believing in the Lord, we should have that heart that we want to obey the Lord more and more. बाइबल कहता है 40 वर्ष इजराइल को परमेश्वर ने चलाया, इजरायली लोगों को इजराइल में चला ताकि जांच के परखे कि उनके मन में मेरा भय है या नहीं। Bible says that for 40 years the Israelites were wandering and God allowed them to wander so that he could test them that they have that faith or not. अब्राहम से भी प्रभु ने वही कहा कि मैंने जांच कर देखा कि तेरे अंदर मेरा भय है। God said to Abraham also that I have tested you and I have found that you have that faith. तो जब हम ओबीडियंस करते हैं, ये बात को प्रूव करता है कि हमारे अंदर प्रभु का भय है। So when we obey the Lord, then it proves that we have faith in the Lord. और यही चीज हमें नम्र बनाता है। And this thing makes us more humble. ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने जैसे कहा कि इच्छा देने वाला प्रभु है, पूरा करने वाला भी प्रभु है। So brothers and sisters, as I have said that the one who gives the desires is also the Lord, and the one who accomplishes is also the Lord. और आपको पता है फिलिप्पी अध्याय 1 क्या कहता है? And do you know that what Philippians chapter 1 says? Good works has already started. That the good works have already started. आपके अंदर वो काम शुरू हो चुका है। The good work has started in you. आप देखो, जब से यीशु में आया और तब से अभी तक देखो आपके जीवन में कार्य कैसे बदल रहा है। पहले थे वैसे नहीं हो आप।
And just you examine yourself from the time you came to the Lord and till now, you are not the same person. Things are changing in you. अपने अंदर हम धीरे धीरे बदलाव को देख रहे हैं. We are seeing that change in ourselves slowly, slowly. हाँ, गलती हमसे होती है, लेकिन हम ये रियलाइज भी करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. Yes, we do make mistakes, but then we realize that yeah, we should not do like this. और हम प्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु हमें बदल दे. And then we go to the Lord and we say, Lord, please change us. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही इसकी शुरुआत है. So brothers and sisters, this is the starting point. और यही चीज हमको आगे आगे लेकर जाएगा और जैसे प्रभु में हमें सिद्ध बनाता जाएगा. And this thing will take us further and further and will make us more complete in Him. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं एक ही बोलना चाहता हूँ. Brothers and sisters, I want to share one thing with you. कि जिसने हमारे अंदर भले काम शुरू किया है, that the one who has started this good work in us, पौलुस कहता है वो मसीह आने तक हमारे अंदर वो करता रहेगा. and Apostle Paul says that he will continue doing it till the time Jesus will come. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो अच्छा काम शुरू हो गया है. So brothers and sisters, I want to encourage you that the good work has already started in you. जिस दिन से आपने यीशु को अपनाया, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है. And from the time you have accepted the Lord, this work has already started in you. प्रभु ने वो काम करना आपके अंदर शुरू कर दिया है. The Lord has already begun to do this good work in you. अब्राहम के नाई अगर आपके सामने वो परिस्थिति नहीं दिखती होगी, लेकिन आप उस परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो. It may be so that similar to the circumstances of Abraham, that situation might exist in your life, but you have to trust in the Lord. और ये वचन ने रियली मेरे लाइफ में एक छुटकारा, एक फ्रीडम लाया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको भी जरूर आशीष करेगा. आमीन. And this fact has brought a deliverance, a freedom in my life, and I believe that this fact will change your life also. Yeah, I would like to share a few things which God put in my heart while Brother Kiran was sharing. तो मैं आपसे कुछ बातें बांटना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में आई जब भाई किरण बांट रहे थे. You know, we all know God is our Father. You know, God's relation with us. God loves us so much. All these things are established facts, and we all know it very well. हम लोग ये सब बातें जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता के समान है, पिता है, और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और ये सब बातें हमारे हृदय में बिल्कुल सिद्ध हो चुकी हैं. But we know it, but we don't always realize that it's not possible to please God without faith. हम लोग ये बात जानते हैं, बट ये बात हम एहसास नहीं कर पाते कि हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि हम परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न करें. So we always take God for granted. We consider God as, you know, as one of the human beings whom we respect. कई बार हम परमेश्वर को ऐसे हल्के से ले लेते हैं और हम लोग ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर एक इंसान के समान है जिसका हमें आदर करना है. I used to believe God as my grandfather whom I loved a lot. मैं परमेश्वर को अपने एक दादाजी के समान मानता था जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ. But God tells very clearly, I am not like any human beings. I am not like any of you. मगर बाइबल ऐसा बहुत सही साफ रीति से बताती है कि परमेश्वर ऐसा बोल रहा है कि मैं एक इंसान के समान नहीं हूँ. That's why we have to grow in the knowledge of God. We should know God more and more as the days progress. इसीलिए हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की समझ में और बढ़ते जाएं और उनको और जानें. So that's why it's not possible to please God without faith. We should believe in God. और इसीलिए परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना बिल्कुल संभव नहीं है. हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है. We read from Romans 4:21. It says in NASB that God is able to do what He has promised. तो हम पढ़ सकते हैं रोमियो के 4 अध्याय के 21वें वचन में. Yeah, it is fully. God is able to promise what He has promised.
तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर सामर्थी है कि उस बात को पूरा करने में जो उसने वायदा किया है। In my verse, it says God has got the power to do what He has promised. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। So it was coming to my mind all the time, whenever some problems comes to me, whenever I pray something, do you really believe that God has got the power to do what He has promised? तो मेरे मन में यह बात कितनी बार आती है कि जब कोई वायदा परमेश्वर ने किया है तो क्या परमेश्वर के पास सच में वह सामर्थ है कि वह उसको पूरा करे। That is what we should believe. For example, if you walk on a road and a man comes and tells you there's a lion on the road, तो यही बात है जो आपको हमेशा विश्वास करनी है कि मान लीजिए कि आप एक रोड पर जा रहे हैं और एक शेर है वह वहां पर आ जाता है। if you believe that man, it will be shown in your action. You will run away from that place. अगर आप a man tells you that the lion is there, brother. Yeah. One man comes on the way and he tells you there's a lion on the way. ओके, सो अगर आप रोड पे जा रहे हैं और एक आदमी आपको बताता है कि इस रोड पर आगे शेर है, और अगर आप उस आदमी की बात मान के वहां से चले जाते हैं, इसका मतलब आप उस आदमी पर विश्वास कर रहे हैं। If you believe in him, you will run away. It will be shown in your action. और अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं तो आप वहां से भाग जाएंगे, और आपकी जो क्रिया है, जो कर्म है, वहां पर बता देगा कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। He told you there's a lion, but you still continue to walk. That means that you have not believed in him, or you have not heard it properly. और अगर वह इंसान आपको बता दे कि वहां पर शेर है, मगर आप उस पे फिर भी आप आगे चलते जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। This is what believing in God. The Bible says that we should believe in God. If you really believe, it will be shown in your actions. तो बाइबल ऐसा कहती है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो आपकी जो काम है उससे पता चल जाएगा ऐसा। That's exactly what Abraham believed. Abraham believed, and it was shown in his action. He went and sacrificed his son, knowing that God has got the power to raise my son anytime. तो यही काम था जो अब्राहम ने किया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और इसीलिए वह अपने पुत्र को भी बलिदान देने के लिए गया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि वह उसके बेटे को मरे हुए में से जिला भी सकता है। This is what we should. This is the primary thing in our relation with God. Every moment of our life, when we pray, when we meet our circumstances, we should believe in a God who is able, who has got the power. तो यही बात हमें हमारे जीवन में लानी है कि जब भी हम परमेश्वर की बात सुनते हैं तो हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना है, और यह मानना है कि उसमें सामर्थ है। When Jesus stood in front of Mary and Martha at the tomb of Lazarus, he said that if you believe, you will see the glory of God. जब यीशु मसीह मेरी और मार्था के सामने खड़े थे, जहां पर लाजरस की लाश रखी थी, और तब वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। That means if you don't believe, what will happen? You will not see the glory of God. You will not see a miracle. You cannot see a miracle at the Lazarus tomb if you don't believe. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप उस परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाओगे, और आप लाजरस को मरे हुए में से जिला हुआ नहीं देख पाओगे। That's why, in 4:21 we further read, this faith was considered as righteousness for Abraham. तो यही बात यहाँ लिखी है रोमियो के 4 के 21वें अध्याय में, चौथे अध्याय के 21वें वचन में, कि यही बात अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। So let us not forget this. Our righteousness rests on the fact that we know, we believe, we trust in God who has got the power and is able. तो आइए हम इस बात को कभी भूले नहीं कि हमारा जो धार्मिकता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करें और उसके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रखें। So it is that serious. The faith is the foundation of our Christian life. It is not just the ordinary faith. It is a faith in the ability and the power of God and your action based on that. तो ये बात इतनी ज्यादा गंभीर है क्योंकि यही हमारे मसीही जीवन का नींव भी है
कि परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा करना, उस पर विश्वास करना। If you really believe in God, you will take sin very seriously. और अगर आप परमेश्वर पे सच में विश्वास करते हैं तो आप आपको बहुत गंभीरता से लेंगे, Because God Himself said the consequence of sin, how sin can damage your life in the present world and also in the world to come. क्योंकि तब आप पाप को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पाप के विषय में बताया है कि कैसे पाप आपके जीवन को इस समय में भी नाश कर सकता है और आने वाले पीढ़ियों तक, अनंत काल तक नाश कर सकता है। That is your reaction to the faith. और यही आपकी प्रतिक्रिया है विश्वास के बदलाव में। If you continue in sin, you are like that man who heard there's a lion on the way and he's continued to walk. और अगर आप फिर भी आप पाप करते जाएंगे तो आप उस इंसान के समान है कि जिसने सुना कि वहां पर उस रास्ते पर आगे शेर है, परंतु फिर भी वह चलता गया। As brother has read this verse, Philippians 1:6 says, being confident of this, that he who has begun a good work in you will complete it until the day Christ comes. तो जैसे अभी भाई ने पढ़ा था इस वचन में से, फिलिपियों के पहले अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। So when we submit to God, surrender to everything God placed in front of us, He will make us like His Christ. As the days progress, every day we will become more and more like His Son. तो जैसे हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेंगे, उसके हाथ के नीचे अपने आप को रख देंगे, तभी हम ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बनते जाएंगे। What 2 Corinthians 3:18 says, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. और जैसा 2 कुरिन्थियोस के 3 अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। I want to believe this. I am being transformed into His image with ever increasing glory. Every day our glory is increasing. That glory which comes from God. तो मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि दिन प्रतिदिन मैं उसकी छवि में बदलता जा रहा हूँ और उसकी जो महिमा है वह धीरे धीरे मुझ में प्रकट हो रही है। I am not becoming older every day. I am not becoming weaker every day. I am not going to nearing my grave every day, but I am becoming more and more in glory of the Lord Jesus Christ every day. तो मैं दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा हूँ या मैं पुराना हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उस महिमा में बढ़ता जा रहा हूँ। Amen. Yeah, I was really blessed to hear Kiran sharing. I'm so glad in my heart to hear the words. And see, I'd like to just share Romans chapter 10. तो मैं बहुत ही आशीषित हुआ जब भाई किरण बांट रहे थे, और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ रोमियो के 10वें अध्याय से verse 13 and 14. उसमें 13वां और 14वां वचन says, for whoever will call upon the name of the Lord will be saved. How then shall they call upon him in whom they have not believed? How shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? वहां पर ऐसा लिखा है, क्यों रोमियो के 10 के 13 और 14 में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। Then verse 17 says, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. तो 17वें अध्याय में लिखा, 17वें वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So God has not sent angels to
to proclaim His word, but God has sent His own creation, the man, to proclaim His word. तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं भेजा कि उसके जो वचन है उनको मांगे, परंतु परमेश्वर ने इंसानों को भेजा है कि वे उसके वचनों को क्लेम करें. So that's how we have all heard, because God has used some instrument to speak to us about His Son Jesus. और इसीलिए हमने अभी जैसे सुना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि हम that we come to know Christ. परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उनको और जान पाए. No, that He used some people to speak to us about Christ. और परमेश्वर ने कुछ इंसानों का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों का इस्तेमाल किया कि वे हमसे मसीह के विषय में बता पाएं. So that's why it says in verse 14 that how shall they hear without a preacher? और जैसे यहाँ लिखा है रोमियो के 10:14 में कि वे उस पे विश्वास कैसे कर पाए एक प्रचारक के बिना. So that's why we hear the preaching in the church. और इसी कारण से हम सुनते हैं प्रचार अपने कलीसिया में, so that faith can come into our lives. ताकि जो विश्वास है वह हमारे जीवन में आ जाए. Bible says faith in verse 17 that faith comes from hearing and hearing the word of Christ. तो जैसे 17वें वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. So the word of Christ is it's in Greek it's called rhema. The rhema, that means the spoken word or what Christ speaks into our heart. तो परमेश्वर का वचन है वह जैसे ग्रीक भाषा में कहते हैं रीमा. रीमा मतलब परमेश्वर द्वारा बोला हुआ वचन जो सीधा हमारे हृदय में आ जाए. So we are hearing the word of God in the preaching in the church and in whatever messages we hear, but there is a rhema, the spoken word of Christ which comes into our heart. तो हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं कलीसिया में और जैसे भी हम सभाओं में सुनते हैं, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह रीमा के समान है जो परमेश्वर का द्वारा बोला हुआ वचन जो सीधा हमारे हृदय में आए. So if we don't hear the rhema of Christ, we are hearing so many messages, but it doesn't make an impression in our life. तो अगर हम उस रीमा को नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग बहुत सारे वचन को, बहुत सारे संदेशों को सुन सकते हैं, परंतु वह हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव लेकर नहीं आएगा. If you read in 2 Peter chapter 1 verse 19, तो अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस के पहले अध्याय के 19वें वचन में, it speaks about the prophetic word. और वहां पर लिखा है एक भविष्यवाणी वाले वचन के बारे में. It says, and so we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention, as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. तो दूसरा पत्रस 1:19 में लिखा है, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे. So it is like the word which we are hearing in the church preaching, or even the word which we are reading, one day it makes, you can say, as we in common language, it makes sense to us. तो यह वैसा है कि जो भी वचन हम सुन रहे हैं कलीसिया में या फिर हम पढ़ रहे हैं बाइबल से, तो एक दिन ऐसा आता है जैसे बाइबल कहती है कि वह हमारे हृदय में चमक उठता है. As it says, a lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises in our hearts. तो वह वैसा है कि जैसे अंधियारे में एक दीप जलता है और वह उजियाला देता है, और तब तक उजियाला देता है जब तक कि सुबह ना हो जाए और सूरज ना निकल आए.
Brothers, I want to encourage each one of you that should happen to us. तो भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों को यह प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि यह हमारे जीवन में होना चाहिए। Today, what we heard from Kiran is something which has become a lamp shining in the dark place, and something has arisen in his heart. तो आज जो भी भाई किरण ने बांटा वह ऐसा है कि कोई दीपक जो अंधकार में चमक उठा और उसके हृदय में उजियाला कर दिया। And it is not some Bible teaching that he gave today. और यह कुछ बाइबल से पढ़ी हुई बात नहीं थी जो उसने बोली। He has spoken what has been revealed to him. और उसने वह बात बोली जो उस पे प्रकट हुई। So for that I really thank God for the different ones that God is revealing so many things. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें कितनी अलग-अलग बातें प्रकाशित करते हैं। So what he shared was an encouragement to me and a challenge to me. और जो भी उन्होंने बांटा वह मेरे लिए एक प्रोत्साहन था और एक चैलेंज था। It says in Romans 4 verse 20 and 21. तो जैसे लिखा है रोमियो के चौथे अध्याय के 20 और 21 वचन में, Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that he who has promised was able also to perform. तो वहां ऐसा लिखा है कि और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। So we all have areas in our life where we need to trust God. Maybe generally we trust God, but there are some areas which we need to really trust God and have the faith of Abraham. तो हम सभी के जीवन में ऐसे कुछ भाग होते हैं जहां हमें परमेश्वर को भरोसा करना है। वैसे तो साधारण रीति से हमें भरोसा करना ही है, मगर कुछ ऐसे भाग है हमारे जीवन के जहां पर हमें खास रीति से परमेश्वर को ही भरोसा करना है। So I want to hold on to the faith of Abraham, that he who promised is faithful and he is able to perform. तो मैं जो अब्राहम है उसका जो विश्वास है उसके पर उसको पकड़ के रखना चाहता हूँ कि जिसने मुझे वायदा किया है वह सामर्थी है कि वह अपने वायदों को पूरा करे। The important message today was about the word of God. तो How important? Okay, sorry. तो जो महत्वपूर्ण वचन था आज का वह परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता के विषय में था। Not forgetting that the word was born in flesh and came in the name of our Lord Jesus Christ. और यह बात भूलनी नहीं है कि जो परमेश्वर का वचन था उसने देह धारण की और वह मसीह के रूप में इस जगत में आया। And this word was born by the Spirit of God. और यह जो वचन था वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पहना गया। That's why God says in Matthew 24:25, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में मत्ती के 24वें अध्याय के 25वें वचन में कि धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। How important the promise of God is. This is. तो कितनी महत्वपूर्ण वायदा है ये हमारे लिए। So the biggest promise that God has given us. यह सबसे बड़ा वायदा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। He says, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. वहां ऐसा लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। And how many who believes in this word, in this promise of God? कितने लोग हैं हम में से जो इस बात पर विश्वास करते हैं, इस वायदे पर? Because God says in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के 29 अध्याय के 11वें वचन में कि
कि मैं जानता हूँ कि मेरे वादे तुम्हारे लिए क्या हैं, मेरे वादे तुम्हारे लाभ के लिए हैं और तुम्हारे हानि के लिए नहीं हैं। How many trust in this promise of God? तो हम में से कितने लोग हैं जो इस वायदे पर, परमेश्वर के इस वायदे पर विश्वास करते हैं? I can guarantee anyone, my hope, my trust, my faith is much bigger than anyone else, because this verse is written even in my children's room also, and I believe and I trust in it. तो मैं पूरा विश्वास, पूरा जो आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ये वचन पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये जो वचन है ये मेरे बच्चों के कमरे में भी लिखा है और मेरे घर में लिखा हुआ है। And trusting is in the Lord, putting your full hope, your full trust. If you really trust in the Lord, this is what the Lord says in same Jeremiah 17, verse 7 and 8. Blessed is the man who trusts in the Lord. Trust in the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of doubt, for it does not cease to bear its fruit. ब्रदर, जेरेमाया 17 which verse? 7 and 8. तो यह वचन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। So this is the promise that God is saying to everyone, whoever trusts in him, trusts in his word that he has says, what he has said, whatever promise he has given. This is the biggest promise that God is telling us. तो यह वायदा है जो परमेश्वर हमसे, जो हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जो हमसे कर रहा है, क्योंकि जो भी उन पर विश्वास करेंगे उसके जीवन में यह सबसे बड़ा वायदा है। Because building a pillar on the rock, that is Jesus, the pillar of faith, will always keep you standing strong, whatever your situation, whatever your problem, whatever your difficulties, whatever you're going through. Only your faith can save you, because even Jesus, whenever he healed, he said, your faith has healed you. तो जो भी आपकी परिस्थिति हो, परंतु यदि आप उस चट्टान पर खड़े हैं जो यीशु मसीह में है, तो जो भी जीवन में हो, तो आपके जीवन में हो, तभी आप यही बोलेंगे। अगर आप बीमारी से चंगे होंगे या कुछ भी मुसीबत से भी गुजरेंगे, तो आप यही बोलेंगे कि मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। करेक्ट? I will end here with Hebrews 13 verse 8. It says, Jesus is the same yesterday and today and forever. और इब्रानियों के 13 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और सदा के लिए एक ही हैं। Amen. आमीन। जो भाई किरण ने शेयरिंग किया, मैं एंजॉय किया उस शेयरिंग को, और वो एनकरेजिंग था। और मैं देखता हूँ कि किस तरह परमेश्वर हमारे भाइयों के बीच में काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो भाई किरण ने शेयरिंग किया। और रोमियो 1:17 में लिखा है कि एक धर्मी व्यक्ति विश्वास से जिएगा। और ऐसा नहीं कि विश्वास जो हमको काफी सारा ब्लेसिंग, शारीरिक ब्लेसिंग लेके आए, बट वो ब्लेसिंग जो यीशु मसीह कहता है कि जो लोग मुझ पे विश्वास किया उनको मैं अनंत काल का जीवन दूंगा। मतलब उसका लाइफ, उसका खुद का जीवन जो ना शुरुआत है और ना ही अंत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक को देना चाहता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति यीशु के पास आया। एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे जब ब्रदर किरण शेयरिंग कर रहा था मेरे मन में आया। वो व्यक्ति मत्ती 19 में लिखा है, मैं पूरा स्टोरी नहीं बताना चाहता हूँ, बट उसमें लिखा एक धनवान व्यक्ति आया
और यीशु के पास कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो वहां पर यीशु मसीह बोलते काफी सारा चीज बताते हैं, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और आगे वो देखते कि लास्ट में इसको बोलते कि जितना भी तेरा धन है वो गरीबों में बांट दे, बट वो छोड़कर चला जाता है यीशु को, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और यीशु मसीह आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है कि यीशु मसीह बोलते कितना मुश्किल है, कितना सॉरी असंभव है ये जो धनवान व्यक्ति है वो परमेश्वर का राज में जाने के लिए। सी यीशु का स्टेटमेंट है 26 में लिखे, इस तरह लिखा है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा मनुष्य से तो सॉरी ये चकित होकर फिर से यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह बता रहा है कि 24 में लिखा है, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज में धनवान को प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाकी के समान निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेले ने बहुत ही चकित होकर फिर उससे उद्धार, किसका उद्धार हो सकता है? यीशु के चेलों ने सुनकर वो लोग बोला कि किसका उद्धार हो सकता है, कौन परमेश्वर का राज में जा सकता है? तो यीशु ने उन लोगों को देखकर कहा, यीशु ने उसे देखकर कहा कि मनुष्य के लिए तो ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इंसान, यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि इंसान के लिए असंभव है बट परमेश्वर के लिए संभव हो। लेकिन ये हमको विश्वास करना है। हम हर परिस्थिति में, हर टाइम में, जब हम हर स्थिति में गुजरते हैं तो हमको परमेश्वर पे जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया, जैसे कि हमने सुने किरण से कि उसका बॉडी भी ऐसा स्थिति में नहीं था कि बच्चे को जन्म दे सके, ना ही सारा बच्चे को जन्म देने का स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उस पर विश्वास किया उसने। पर इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे डाउट नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और मैं सच कहता हूँ पर मेरे प्रिय भाइयों, वो हो सकता है टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम परमेश्वर वेट कर रहा है कि देखते कितना विश्वास कर रहा है, कितना टाइम। बट मैं सच कहता हूँ कि वो जिसने वादा किया है वो लाइफ तुमको परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, वो देगा। वो आज हमको लग रहा है कि यार ये हो रहा नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ये नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा सिचुएशन में हम आ जाते हैं। बट लेकिन आप हमेशा याद करो, ये परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं कि उसके वचन को पर विश्वास करो, डाउट मत करो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हर समय हर पल मैं ऐसे विश्वास में जी सकूं, ना कि कोई डाउट में, ना कोई फीलिंग के अंदर। मैं प्रभु को धन्यवाद करते इस वचन के लिए। गॉड ब्लेस यू। I really thank God for what I heard today. It really was, faith building. तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ जो भी मैंने आज सुना। एंड सिस्टर लेटर ऑन It was like faith building message. तो वह मेरा विश्वास को बढ़ाने वाला संदेश था। I was reminded when brother shared from Romans 11 and verse 26. जैसे भाई जैसे भाई रोमियो के 11वें अध्याय के 26वें वचन से बांट रहे थे, तब मुझे ये बात स्मरण आई। It says that, and thus all Israel will be saved, just as it is written, the deliverer will come from Zion, he will remove ungodliness from Jacob. तो जैसे वहां लिखा है कि और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। This verse is taken from Isaiah chapter 59 and verse 20. तो यह जो वचन है वह यशाया के 59वें अध्याय के 20वें वचन से लिया गया है। It says, and a redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob declares the Lord. And I'll read verse 21 also. And as for me, this is my covenant with them, says the Lord, my spirit which is upon you, and my word which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your offspring, nor from the mouth of your offspring's offspring, says the Lord, from now and forever. तो वहां पर ऐसा लिखा है यशाया के 59 के 20 और 21 में, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है,
और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। So, when I had read this verse sometime back, it really encouraged me that, the Word of God is not only giving a promise to me when I turn from my iniquities, but He's also giving me promise for my children and my children's children also. तो यह वचन जब मैंने कुछ समय पहले पढ़ा तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला पढ़कर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैं मेरे पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर देखूंगी, तो यह जो वायदा है ये मेरे बच्चों के लिए भी है कि वह उनका आत्मा मुझ पर डालेगा, और मेरे बच्चों के बच्चों के लिए भी है। I was so surprised to when this touched my heart. Like, I don't think so much about, there are times when I think, how can I be so selfish, because I am mostly thinking about myself. And, but God is not like that. He's thinking ahead, 2 generations ahead. He's thinking of my children, my children's children, and He's promising so much of good for them also. Something which I myself haven't thought of. तो यह बात मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दी कि परमेश्वर हमारे विषय में कितना सोचता है। मैं तो हमेशा ज़्यादातर अपने बारे में सोचती हूँ, और परंतु अगर जैसे यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कितना भला है कि वह हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के बच्चों के लिए भी कितना भला सोचता है। So I praise God that by faith, not because of what we have done or what our children have done, but God's word He has given to us as, it's His word. Like we heard that it's not man's word, and God is not a man. He's so different from man, any man. Somebody whom we may love, or not. He's so much unlike man. It's good to remind ourselves through His word who He is and what He has promised us because of His goodness. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुद के विषय में बोल रहे हैं कि वे एक मनुष्य के समान नहीं है, वे मनुष्य से अलग हैं, और उनका वचन हमें उनके विषय में सिखाता है। And also, like Romans 11 said about, how to turn, He will remove ungodliness from Jacob. और वैसे ही रोमियो के 11वें अध्याय में जैसे हमने पढ़ा कि वह अधार्मिकता को हमारे बीच में से हटा लेंगे। And we see in Timothy, 1 Timothy chapter 3, it talks about the mystery of godliness. और हमने यह भी देखा कि पहला तिमुथियों के 3 अध्याय में वहां पर धार्मिकता के विषय में लिखा है that, what is the mystery of godliness? It is Jesus Himself. He is the mystery of godliness. Through Him alone we can find salvation from ungodliness just by faith in Him. It seems so foolish, like, to have, like the brothers were sharing, to have just by faith. Why? How can it be possible without my doing anything? It's just by faith. But God has honored Jesus so much that just because I put my faith in Jesus, God is so pleased with me. I'm not putting my trust in my good works or what I do, but the fact that I'm trusting His Son is, with that, God is so pleased, and He is going to bring about this change in me and in my children's children, just because of this one thing, that I'm putting my faith in Jesus. तो वहां पर पहला तिमुथियों के 3 अध्याय में जो धार्मिकता है उसके रहस्य के विषय में लिखा है, और वह रहस्य क्या है? वह रहस्य है यीशु मसीह खुद, क्योंकि यीशु मसीह पर ही विश्वास करने से हम उस धार्मिकता तक पहुंच सकते हैं। हमारे खुद के काम या हमने पहले क्या किया या हम किस लायक हैं
उसके द्वारा हम कहीं नहीं पहुंच सकते, परंतु यीशु मसीह पर ही विश्वास करके और परमेश्वर क्या है उसके ऊपर विश्वास करके ही हम उस धार्मिकता को पा सकते हैं। I praise God for reminding me of that today. और मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि उसने यह बात मुझे स्मरण कराई। Okay, so the past few days I've been praying, and this verse came to me, Galatians 5 verse 22. तो पिछले 2 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे यह वचन मिला गलातियों के 5वें अध्याय के 22वां वचन। The fruit of the Spirit. So the fruit of the Spirit will tell me how much I'm growing. जो आत्मा का फल है वह मुझे बताएगा कि कितना मैं बढ़ रहा हूँ। The fruit of the Spirit is love, joy, peace. और जो आत्मा का फल है वह है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, Patience, kindness, goodness, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, faithfulness. नम्रता और संयम। So I see that there's that the first word, the first important word is love. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण पहला शब्द यहाँ लिखा है वह है प्रेम, And close behind it is joy. और उसके बाद है उसके साथ आनंद, And then after that comes peace, patience. These automatically follow. But the first most important thing is love. और उसके बाद आता है मेल, धीरज। तो ये बातें स्वाभाविक रीति से पीछे आ जाती हैं, मगर सबसे ज्यादा पहला जो स्थान है वह है प्रेम का। So that is love for people around me, for everything around, everything that has life. So love of life itself, of human beings, of the trees. We have to love and respect everything that's around us because this is God's gift to us. तो जो प्रेम है हमारे आसपास के लोगों के लिए और जो भी मनुष्य हैं उनके लिए प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। So this is what came to me now, and this is what I feel is helping me to grow better, to be a better person. तो यही बात है जो मैं जान पाया कि और जो मुझसे बात किया कि मुझे प्रेम इस फल की आवश्यकता है ज्यादा बढ़ने के लिए। That's it for me. Thank you, everybody. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन काफी प्रोत्साहन भरा था। मुझे भी आशीष मिला आज के वचन से। मुझे वापस तरोताजा किया कि प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए, मेरे लिए सब कुछ किया है। मुझे सिर्फ विश्वास करके आना है प्रभु के पास में। तो मैं आज के जीवन में सोच सकता हूँ कि मैं अब्राहम के जैसे विश्वास को कैसे मैं दोहराऊं, क्योंकि उसके जैसे विश्वास उसने किया, उसके आधार पर उसको धार्मिकता मिल गई, फ्री। उसके विश्वास से उसको धार्मिकता मिल गई। तो परमेश्वर ने उसका वो विश्वास देखा, हाँ, कि तेरी संतान होगी, तेरे से देशों देश और जाति जाति लोग, मानव इस धरती पर तुम्हारे द्वारा आने वाले। जबकि वो 90 साल का था या 75 इयर्स का था, एक भी मतलब संतान नहीं हो रही थी सारा के द्वारा। तो उसने उस कंडीशन में विश्वास किया कि आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि 40 या 30 साल के जवान लोग को भी कभी कभी संतान होती नहीं है, और वो 75 साल का था और उसने विश्वास किया। उसने प्रभु को देखा नहीं, ना ही क्रूस को देखा है, ना ही यीशु की उद्धार देखी या उदाहरण देखा, लेकिन विश्वास किया, आंख बंद के करके विश्वास किया और परमेश्वर के वायदों पर आमीन भी बोला। और वो देख के परमेश्वर कितना खुश हो गए, और इसीलिए उनको वो धार्मिकता जो आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी मैं धार्मिक बनूं प्रभु के नजर में, मैं तो इतना बुरी हूँ, मैं किसी को प्रोत्साहन भी नहीं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, मैं इतना
अश्लील बातों के भी सोचते रहता हूँ। मैं इतनी कड़वाहट है मेरे दिल में कि मैं कुड़कुड़ करना आसानी से करता हूँ। अपने आप को दोष लगाते हैं। वो अच्छा है, हम अपना आपका न्याय करेंगे। वी शुड जज आवरसेल्फ सो दैट वी विल नॉट बी जज। बट ऐसा मत सोचो कि मतलब अभी प्रभु मेरा विश्वास खत्म हो गया या प्रभु मेरे से नाराज है। ऐसे वो लोग इब्राहिम की तरह कि मैं आज भले मैं पापी हूँ या मैं पाप से जूझ रहा हूँ, लेकिन विश्वास है कि प्रभु मुझे जय दिलाएगा। इब्राहिम ने भी वही बोला, ही बिलीव्ड गॉड एंड हिज वर्ड एंड ट्रस्टेड इन हिम। रोमियो का 4वां अध्याय। एंड देयरफॉर, इसलिए वो वचन, नेक्स्ट वचन ऐसे बोल रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो धार्मिकता दी, और वो हमारे लिए भी वैसे ही लागू होगा। इसलिए अगर मैं जूझ रहा हूँ किसी चीज से और मैं उसके लिए उससे मैं सच मानता हूँ कि मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ, शैतान को ये भी विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने यीशु द्वारा मेरे सारे पाप धो दिए और मैं जयवंत हूँ। वो वचन अध्याय 4 ऐसे ही खत्म होता है। Therefore, believe in Lord Jesus Christ who died for you and who was resurrected। वो वचन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रोमन्स 4 में है, रोमियो का 4, उसका कंक्लूजन में। हाँ, 4 का 23 लिखा है। अभी ये जो इब्राहिम के लिए जब बताया है पौलुस ने, ऐसे लिखा है, नॉट फॉर हिज सेक ओनली, ये सिर्फ इब्राहिम के लिए लागू नहीं है, बट इट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू हिम, बट फॉर आवर सेक ऑल्सो, अपने लिए भी ये धार्मिकता लागू होती है। टू हुम इट इज क्रेडिटेड, किसके लिए लागू होती है? एज दोज हु बिलीव इन हिम हु रेज्ड जीसस अ लॉर्ड फ्रॉम द डेड। हम लोग विश्वास करते हैं यीशु प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, एंड वी शैल रेन विथ हिम, रोमन्स चैप्टर 5। ये धार्मिकता आ जाएगी, कुछ काम या कहीं कुछ बड़ा दान धर्म करने से नहीं आती है धार्मिकता। हो पता है हमको, जेम्स ने भी कहा है कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन पहले प्रभु के काम में विश्वास रखो, धर्मी बोल के थोड़ा धाड़स बांधो। तो वी बिलीव इन जीसस, व्हेन वी हैव दैट सेम फेथ लाइक Abraham had in God, we believe in Jesus who raised the Lord, God raised him from the dead, उसको जी उठाया, and who has delivered over because for our transgression and raised us for our justification। हमारे उद्धार के लिए, हमारे न्याय दिलाने के लिए प्रभु यीशु जी उठे, ना ही हमको कंडेम करने के लिए। तो बहुत प्रोत्साहन भरा मैसेज था, वर्ड था। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आप लोगों ने शेयर किया।